Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 30th of March 2024. You are watching with Naresh Sharma, and first of all we are going to revise the previous day session with the help of MCQs. So first of all, just start with question number 1 and also try to answer these questions before I provide you the correct answer. Question is about START program. START program is associated with which one of the following? START program कौन सी ऑप्शन से रिलेट करता है, एसोसिएट करता है? ऑप्शन ए स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी डिफेंस सेक्टर डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ women, road construction in rural areas. So guys, the correct answer is space science and technology, because this program is focusing especially on the attraction of youth in space science and technology from the beginning. START program has been launched by which one of the following organization? You have already known about this question that space program is associated with space science and technology. So now you can easily identify that space science and technology is associated with which one of the following organization. DRDO is solely associated with the defense research and development. NCRT, it is associated with the education sector. ISRO, Indian Space Research Organization, it is associated with the space science and technology. Ministry of Road Transportation, no. So that's why the correct answer is ISRO. So ये जो स्टार्ट प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है इसरो ने, और इस स्टार्ट प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है यंगर जनरेशन को, अपने यूथ को स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अट्रैक्ट करना, उनको इनिशियल लेवल से ही फ्रॉम द ग्रेजुएशन, फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको उसके लिए अट्रैक्ट करना और बेसिक लेवल की उनको नॉलेज देना, सो दे कैन आइडेंटिफाई देयर चॉइस, देयर इंटरेस्ट, whether they can do much better in the field of space science and technology, or they can do something better than the previous generation. So इसमें ये इस बात पर फोकस किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन संकल्प. ऑपरेशन संकल्प has been launched by which organization? Guys, if you know that what is Operation Sankalp, then you can easily identify that it has been launched by which organization. So the correct answer can be one of the option. Indian Navy in Indian Ocean, Indian Army in Kashmir, Indian Air Force in Delhi, or ISRO in Karnataka. So guys, the correct answer is Indian Navy in Indian Ocean. You know, in the Indian Ocean region, in the regions of Red Sea, Strait of Hormuz, और द ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया, है ना, ये बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पर वहां की रीजनल सिक्योरिटी को थ्रेट रहता है. जो सोमालिया जैसे कंट्री के पायरेट्स हैं वो वहां से बहुत सारे शिप्स को हाईजैक कर लेते हैं. तो ऐसी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे डील करने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प चला रखा है. कहां पे? इंडियन ओशियन में. So this is the correct answer. Question number 4. Gulf of Khambat is located in which of the ocean? In the last session when we discussed about Operation Sankalp, then we also studied about the basic information regarding that region, and I also showed you the map of this region where you can easily identify that where this location is situated. तो गल्फ ऑफ खंबात ये कहां पर है? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन या रेड सी? सो गाइज द करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशियन.
गल्फ ऑफ खंबात जो गुजरात वाला रीजन है उसके आसपास के रीजन में है गल्फ ऑफ खंबात। I will show you the map after these questions so you can understand the concept and the region with more clarity. Now we are going to question number 5. UNRWA stands for। हमने लास्ट सेशन में एक एडिटोरियल आर्टिकल भी डिस्कस किया था जो इजराइल और हमास का वॉर है उसके रिगार्डिंग में था, ठीक है, और उसमें जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प दी जा रही है वहाँ के लोगों को उससे एसोसिएटेड है ये एजेंसी। ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ हिंट दे दी। सो नाउ इट इज स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस रिहैबिलिटेशन एंड वर्ल्ड एजेंसी और यूनाइटेड नेशंस रेस्क्यू वर्ल्ड अथॉरिटी, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। दिस इज द करेक्ट आंसर। कल जब हमने डिस्कस किया था लास्ट डे सेशन में तो हमने देखा था कि जो UNRW है ये जो है इजराइल और उसके आसपास के रीजन में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है वहाँ के बहुत सारे रिफ्यूजीज को या जो और भी वहाँ पे ह्यूमंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। UNRWA is currently working in which of the following countries? इनमें से कौन से कंट्री में रीजन में ये जो है लोकेटेड है UNRWA और वहां पर ये असिस्टेंट का काम कर रही है। अभी मैंने आपको बताया कि UNRWA इजराइल और उसके आसपास के रीजन में जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है। तो इंडिया, बांग्लादेश, जापान ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली जो है रिजेक्ट हो जाता है। चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका ये भी रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज हमने बात की थोड़ी देर पहले कि इजराइल और उसके आसपास के रीजन में, नियर बाय रीजन में UNRWA अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है। सो द करेक्ट आंसर बिकम्स लेबनान, सीरिया एंड जॉर्डन। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है वहां के लोगों को। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से अचानक से आ गया, ये तो उसमें था नहीं। देखो ये कैसे आया, हमने जब कल के सेशन में डिस्कस किया था लास्ट डे सेशन में तो देखा था कि जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, फूड क्राइसिस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 2022 में 23 में बहुत सारा फूड भेजा था श्रीलंका के लिए और हमने इनका नाम भी लिया था, ठीक है, तो इसीलिए इनका चीफ मिनिस्टर का नाम भी हमने पूछ लिया और ये भी काफी न्यूज में रह रहे हैं आजकल। सो द करेक्ट आंसर इज MK स्टालिन। तमिलनाडु के ये अभी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी पिनराई विजयन, YS जगन मोहन रेड्डी और अनुमूला रेवंत रेड्डी ये भी साउथ इंडिया के ही कुछ स्टेट्स हैं, उनके ये भी CM हैं। अब मैं आपसे होप करता हूं कि आप इनके नेम्स को आइडेंटिफाई करें विद द स्टेट्स कि कौन किस स्टेट का चेयर जो है चीफ मिनिस्टर है। आई होप कि इसका आप आंसर जो है आप कमेंट्स में करेंगे। सो गाइस ये रहा आपका अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर ये जो ऑपरेशन संकल्प, गल्फ ऑफ खंबात इसको जब डिस्कस किया था तो अभी उसके लिए मैं आपको मैप दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर मैप, ये रही आपकी गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी गुजरात में है, और ये रही आपकी गल्फ ऑफ खंबात जो सूरत उसके आसपास वाले रीजन में है। यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान, ये ओमान कंट्री है इसके रीजन वाला, और ये हो गई स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ का रन यही ये वाला रीजन है जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के कई बार जो है इश्यूज बनते रहते हैं। ये रही आपकी सोमालिया की कोस्ट, यहाँ पर जो है पायरेट्स आते हैं और अटैक वगैरह करते रहते हैं बहुत सारे शिप्स पर। तो ये आपको यहाँ पर ये लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। और ये रहा आपका लक्षद्वीप सी जिसको हम लक्षद्वीप आइलैंड हमारे यहाँ पर है। इधर फिर मालदीव्स हो जाता है, ठीक है, और यहाँ इधर हम और नीचे इधर जाएंगे तो इधर आपका श्रीलंका हो जाता है, ठीक है, और इधर अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया और ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड वगैरह ये सब हो गया।
ठीक है, इधर जाएंगे तो आपके फिर चाइना, कैम्बोडिया, थाईलैंड वगैरह वो कंट्री हो गए, और थोड़ा और इधर आएंगे तो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड, और उससे आगे जाएंगे तो इंडोनेशिया। ये यहाँ की लगभग लोकेशन हो गई। सो गाइज, ये हमारे क्वेश्चंस थे और यहाँ से हमने जो है रिवाइज कर लिया लास्ट सेशन को। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो न्यूज़पेपर में काफी इंपॉर्टेंट हैं, और यू नो कि हम केवल द हिंदू या किसी एक न्यूज़पेपर पर डिपेंड नहीं रहते, अदर सोर्सेज से भी हम वो इन्फॉर्मेशन या वो न्यूज या करंट अफेयर लेकर के आते हैं जो एक्चुअल में एग्जाम्स में पूछी जाती है। बाकी यू नो के पॉलिटिकल जो न्यूज होती हैं वो एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। तो अभी रिसेंटली फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 हैज बीन रिलीज्ड। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये देखो फूड जो है इसके रिगार्डिंग में थिंक ईट सेव, सोचो खाओ और सेव करो, है ना। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो फूड वेस्ट इंडेक्स है, इट इज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। यूएनईपी की फुल फॉर्म कई बार बेसिक से एग्जाम्स में पूछी गई है, तो ये भी आपको लर्न रखना है। को-ऑथर्ड बाय WRAP, वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम। मींस जब इसको लॉन्च किया जाता है तो यूनाइटेड नेशंस का यूएनईपी और ये एक प्राइवेट एनजीओ है, ये दोनों ही मिलकर के इसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपको WRAP मिले या यूएनईपी मिले या दोनों मिले तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करना होगा। नाउ इट हैज बीन पब्लिश्ड अहेड ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। अभी हम जो है आज के दिन हम 30th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमैनिटी है उसको चाहिए कि कम से कम चीजों को वो वेस्ट करे। ठीक है, तो फूड वेस्ट इंडेक्स का काम क्या है, कैसे काम करती है, ट्रैक्स ग्लोबल एंड नेशनल जनरेशन ऑफ फूड, कि कितना फूड जनरेट हुआ ग्लोबल लेवल पर और किसी कंट्री में दैट इज नेशनल लेवल पर। इन एडिबल पार्ट्स भी इसमें काउंट होते हैं और फूड पार्ट भी काउंट होते हैं। वेस्टेड एट रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल पर या हाउस होल्ड या फूड सर्विस लेवल पर उसमें से कितना वेस्ट हुआ उस फूड में से। सपोज करो किसी होटल में वहां पर जो है कोई एक फूड बनाया गया, सपोज करो कि जो है समोसा बनाया गया। ठीक है, अब जब ये समोसा बना तो इसमें से क्या कोई इसको बनाते समय कोई जो है बाई प्रोडक्ट हुआ जो वेस्ट हुआ। जैसे नॉर्मली जिस ऑयल में समोसा वगैरह ऐसी किसी भी चीज को हम फ्राई करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, FSSAI के अकॉर्डिंग उसमें हमें 3 बार बस मैक्सिमम 3 times we can fry a food product in that oil. After that, if you are frying a food in that oil which has been used 3 times, then it will make some poisonous acids. इसमें poisonous enzymes वगैरह होते हैं। तो सपोज करो कि आप 3 बार आपने फ्राई कर लिया और फिर आपको 10 kg ऑयल फेंकना पड़ गया, तो एक्चुअल में क्या कर सकते थे कि हम उतना ही ऑयल लेते जो एक्चुअल में यूज हो सकता था। ठीक है, हालांकि इतने भले लोग नहीं हैं होटल इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री में काम करने वाले कि उसमें केवल 3 बार समोसे फ्राई करें। 3 तो छोड़ो, वो 300 दिन तक उसमें फ्राई कर देंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई बाहर का फूड मत खाइए। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल पर ये जो फूड वेस्ट इंडेक्स है, इसका मेन फोकस है कि कम से कम वेस्ट हो। अगर हम अभी रिसेंट रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको और मिल सकते हैं। क्या कि द फूड रिपोर्ट जो है डिफाइंस फूड वेस्ट। फूड वेस्ट का मतलब क्या इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द मीनिंग। तो फूड एंड द एसोसिएटेड इनएडिबल पार्ट्स। ठीक, देखो फूड तो वेस्ट हुआ ही, बट अगर उसके साथ में जो एसोसिएटेड कुछ इनएडिबल पार्ट्स भी हैं, अगर वो भी वेस्ट हुए तो उसको हम फूड वेस्ट कहेंगे। और जो ह्यूमन फूड सप्लाई चेन में से कहीं उसको निकाला गया। सपोज करो कि आपने लिया जो है केन, गन्ना। ठीक है, अब गन्ने से आपने जूस उसका ले लिया, लेकिन उसके साथ में उसका हस्क बचा।
ठीक है, उसका जो फाइबर वाला पार्ट है। अब वो बचा और उसको आपने रोड पर कहीं फेंक दिया, तो इसको कहेंगे हम वेस्ट। लेकिन उसी को यदि आपने कहीं एज ए फ्यूल यूज कर लिया, गांव में तो उस वेस्टेज को जो है, जो जूस निकालने के बाद बचता है, वहाँ के जो कैटल होते हैं वो सब उसको यूज कर लेते हैं और घर में खाना पकाने के लिए चूल्हा वगैरह जो जलता है वहाँ पे काम आ जाता है। लेकिन शहरों में ये सब नहीं हो पाता। तो एक्चुअल में जो जूस था वो एडिबल पार्ट था, लेकिन उसका जो फाइबर वाला पार्ट था वो इनएडिबल पार्ट था, उसको खा नहीं सकते थे। तो ये फूड वेस्ट इंडेक्स वो ये कहती है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसमें से कुछ भी अगर बचा वो वेस्ट हो रहा है, तो दैट इज, ये सोसाइटी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कंसर्न है। तो सारी चीजें यूज होनी चाहिए। फूड वेस्ट जनरेट्स एन एस्टिमेटेड 8 से 10% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो फूड वेस्ट का मतलब केवल फूड वेस्ट नहीं है, उससे जो ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसमें भी इनका 8 to 10% रोल प्ले करते हैं। फूड लॉस और फूड वेस्ट दोनों डिफरेंट है। फूड लॉस क्या इज डिफाइंड एज ऑल द क्रॉप एंड लाइव स्टॉक ह्यूमन एडिबल कमोडिटी क्वांटिटीज, मीन्स चाहे वो क्रॉप हो गई, लाइव स्टॉक हो गया। अब लाइव स्टॉक में से जैसे कि उसका स्लॉटर होता है, उसको मीट वगैरह के रूप में यूज किया जाता है। अब वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कंप्लीटली एग्जिट द पोस्ट हार्वेस्ट स्लॉटर, ठीक है, वो पूरी तरह से एग्जिट कर जाता है उस साइकिल से, उस चेन से, तब हम मानते हैं कि ये फूड का लॉस हुआ। ठीक है, इसमें हालांकि एक्सक्लूडिंग द रिटेल लेवल, इस रिटेल लेवल को इसमें शामिल नहीं किया जाता। मींस इसका मेन कहाँ तक इसका रहता है कि प्रोडक्शन और सप्लाई चेन तक शामिल है, बस रिटेल इसमें शामिल नहीं है। सो ये रहा आपका फूड लॉस। अब अगर हम कुछ और पॉइंट्स को देखें तो भाई 2022 की रिपोर्ट में ऐसे क्या फैक्ट्स निकल कर के आए। जब ये रिपोर्ट आई है तो देयर शुड बी सम फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड सम डेटा जो कुछ बता रहा हो कि रिसेंट टाइम में ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ पता चला कि अराउंड 20% जो फूड है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, मीन सपोज करो आपने अगर 100 kg फूड कहीं बनाया, घर में शादी पार्टी में कुछ भी अगर बनाया, तो उसमें से 20 kg फूड आपका हमेशा वेस्ट होता है। ये इतना वेस्टेज चल रहा है। और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है वो हॉटर कंट्रीज में है जहाँ मौसम गर्म रहता है, बिकॉज वहां पर ज्यादातर लोग क्या खाते हैं, फ्रेश फूड खाते हैं। और फ्रेश फूड खाते हैं, सपोज करो आज सुबह आपने कोई मीन्स वेजिटेबल बनाई और शाम तक अगर आपने कुछ कंज्यूम कर लिया तो ठीक, नहीं तो कल तक वो खराब हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है लोग फ्रिज में रख लेते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग उसको खाना पसंद नहीं करते, तो फिर वो वेस्ट होती है। और भी वहाँ पर इश्यूज होते हैं, बिकॉज जो फूड सप्लाई चेन होती है उसमें जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं वो भी सब नहीं हो पाते। तो बहुत सारा जो मिल्क है जो एक्सपोर्ट होता है, सपोज करो अमूल के प्लांट से होता है, और जब उसको एक्सपोर्ट मीन्स जो है कहीं, अब तो एक्सपोर्ट भी होता है अमूल का जो मिल्क है, अगर वो किसी, सपोज करो कि वो गुजरात से मिल्क आया और वो पहुंचना था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो कई बार क्या होगा कि जो उसमें एयर कंडीशनर लगा होगा, फ्रीजर लगा होगा उस गाड़ी में, कई बार हो सकता है वो बंद हो गया, कई बार वो जो गाड़ी है वो कहीं ट्रैफिक जैम में फंस गई, या कई बार उसको जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उन्होंने उसको सीज कर लिया, रोक लिया। तो ऐसे भी देयर आर सो मेनी रीजन्स विच लेड टू वेस्ट ऑफ द फूड। तो कंपेयर टू अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो रूरल एरिया जो होते हैं वहां पर वेस्टेज बहुत कम होता है, बिकॉज सारा का सारा कहीं ना कहीं वो यूज हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैं केन की आपसे बात की थी, तो केन में से जूस निकाल लिया, उससे गुड़ बन गया, चीनी बन गई। केन का जो वेस्ट बना उससे फ्यूल बन गया, है ना। और फ्यूल नहीं बना तो उस वेस्ट को जो है चारे में मिला करके जो है लाइव स्टॉक को हमने खिला दिया। लाइव स्टॉक को खिला दिया तो वहां से जब उनका जो एक्सक्रेटा निकला, उनका वेस्ट निकला जिसको गोबर वगैरह बोल देते हैं, वो निकला तो वो चला गया कहाँ पर, फील्ड्स में, फार्म फील्ड में चला गया। वहां पर वो एज ए मैन्योर यूज हो गया, एज ए फर्टिलाइजर यूज हो गया। तो बहुत सारी चीजें जो रूरल एरिया है वहां पर वेस्ट बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए फोकस किया जाता है कि जो रूरल लाइफस्टाइल है थोड़ा हम उसको भी अपना सकते हैं लाइफ में। नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इनिशिएटिव्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जो पीस कीपर्स हैं उनके अगेंस्ट में जो क्राइम होते हैं उनका हम एक रिकॉर्ड रखें
और कुछ इनिशिएटिव उसके अगेंस्ट में लिया जाए। अब ये पीस कीपर्स कौन है? तो ये हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। यूनाइटेड नेशंस में डिफरेंट कंट्रीज के मेंबर्स अपने अपने यहाँ से अपनी मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको भेजते हैं। मेरे भी कई सारे दोस्त यूएन पीकेएफ में हैं, ठीक है। तो इसमें वहां से डेपुटेशन पर कंट्रीज से ये जाते हैं। इनका मेन पर्पज होता है कि अगर कहीं वायलेंस चल रहा है, कहीं पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, वहाँ की सोसाइटी में सिविल वॉर छिड़ गया, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स को वहां पर डिप्लॉय किया जाता है और ये वहाँ वॉर में इन्वॉल्व नहीं होती, बस इनका काम होता है कि वहां पर पीस एस्टेब्लिश करना, ठीक है। अब होता क्या है कि इनका ना तो ये किसी ए पार्टी के साथ में होती है ना बी पार्टी के साथ में, बस इनका वहां पर काम होता है कि कैसे वहां का जो वॉर हो रहा है, अगर कहीं पे आपस में झगड़ा हो रहा है या मीन्स बड़े लेवल के जो सिविल वॉर वगैरह जो हो जाते हैं, तो उनको स्टॉप करना, रोकना, ठीक है। इनका मेन काम ये नहीं होता कि ये खुद भी फायरिंग करें या जो है गोलियां चलाएं या बॉम्ब जो है ड्रॉप करें, इनसे इनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार इन पर भी अटैक हो जाते हैं, ठीक। अब गए तो थे वहां पर लोकल पॉपुलेशन को बचाने के लिए, किसी भी सिचुएशन में वायलेंस को रोकने के लिए, लेकिन क्या होता है कि इन पर भी अटैक हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी एक इनिशिएटिव जो लिया गया है उसमें फोकस ये किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पर कि जो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेस के जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनके साथ में वायलेंस ना हो, उनके साथ में क्राइम ना हो। ये कौन कर रहा है? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ये एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च द न्यू डेटाबेस डिजाइन। मीन्स ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने एक डेटाबेस डिजाइन किया है, उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा कि कहाँ कहाँ किस कंट्री में, और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में कहीं भी अगर कोई क्राइम हुआ तो उसको सबसे पहले तो रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो, आप क्राइम को तभी तो रोकोगे जब आपके पास में कुछ रिकॉर्ड होगा कि किस कंट्री में ज्यादा होता है, कितने अब तक क्राइम हो चुके हैं, फिर उस पर आप काम करोगे। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है, लॉन्च किया था इंडिया ने 2022 में, जब इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है मेंबर, आप जो चेयरमैन था उस समय। आपको पता होगा कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो भी एक टाइम पर चेयरमैन बनते हैं यूएनएससी के। जब इंडिया इसका चेयरमैन था तो इंडिया ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। अभी जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के जवान हैं इनको कहा जाता है ब्लू हेलमेट्स। रिसेंटली अभी आपने देखा कि इन्होंने सबने देखो ब्लू हेलमेट पहन रखे, उस पर यूएन लिखा हुआ है। तो इन जवानों को, ये जितने भी, इनको ब्लू हेलमेट कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को, बिकॉज ये ब्लू हेलमेट पहनते हैं और ब्लू कलर के इनके हेलमेट होते हैं। अब ये जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स है, इसने एक बार नोबेल प्राइज भी विन किया था पूरे वर्ल्ड में जो पीस है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए 1988 में। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया वर्ल्ड के उन टॉप कंट्रीज में है जहां से यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा मेंबर्स भेजे जाते हैं। तो इंडिया से लाखों लोग इसमें सर्विस करते हैं। नाउ एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, कोविनेट। व्हाट इज कोविनेट? इट्स फुल फॉर्म इज कोरोना वायरस नेटवर्क। ये इसको अभी लॉन्च किया है किसने? इट हैज बीन लॉन्च बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि WHO का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है? तो WHO ने इसको लॉन्च किया है, एक नया इनिशिएटिव है कोरोना वायरस नेटवर्क, जिसका नाम हमने देखा ही। इसका एम क्या है? इनहांसिंग ग्लोबल सर्विलेंस। मींस ग्लोबल लेवल पर जो सर्विलेंस है और जो रिस्पांस की कैपेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज करना। देखो, कोविड की वजह से बहुत सारी जो डेथ हुई उनमें वन रीजन ये भी था कि पूरे वर्ल्ड में और बहुत सारे कंट्रीज में सर्विलेंस की कोई मैकेनिज्म, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। और आपस में वो जो कंट्रीज में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत सर्विलेंस का सिस्टम है, उनकी अपनी जो लैब्स हैं वो अपने ही देश में तो काम कर रही हैं, लेकिन इस कोविनेट के थ्रू क्या कर रहा है WHO?
कि वर्ल्ड के जितने कंट्री हैं, कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड के सारे कंट्रीज की जो लैब हो वो डिजिटली कम से कम आपस में कनेक्ट रहे। तो कहीं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, पता चला कि सपोज करो कि चाइना में कोई वायरस आया, तो चाइना अपने यहाँ से उसको रिकॉर्ड में डाल दे कि इस तरीके का वायरस आया है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पूरे वर्ल्ड में वहां से इंफॉर्मेशन एक ही बार में सारी लेबोरेटरीज में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस समय WHO इसी पे काम कर रहा है। तो इट इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लोबल लेबोरेटरीज with expertise in human, animal and environmental coronavirus surveillance। तो जो कोरोना वायरस, कोविड से रिलेटेड जितने भी वायरस हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितना कुछ भी होगा उन सब पर क्या करना है, उनका सर्विलांस करना है और अपनी कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज करना है, सो दे कैन रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी सिचुएशन। और व्हेन any country or any society have an advanced surveillance system, then we can easily fight with any emergency। और इमरजेंसी तब होती है जब हम उनको इनिशियल लेवल पर मैनेज नहीं करते, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनकी नॉलेज हमको नहीं होती। जब अचानक से कोई वायरस आता है, कोई डिजीज आती है ना, और उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता, तो बन जाती है वो इमरजेंसी। अगर पहले से ही हम प्री प्लान होंगे, चीजें हमको पता होंगी, तो फिर वो इमरजेंसी में कन्वर्ट नहीं होगी। नाउ अब डिस्कस करते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल। ये आर्टिकल मैंने पहले से रखा हुआ था आपके लिए, इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका आर्टिकल जिसको हमें डिस्कस करना था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मॉस्को में एक टेरर अटैक हुआ। मॉस्को ये कहाँ पर है, चलो मैं बता नहीं रहा हूँ, आप बताइए मॉस्को कहाँ है। और ये किसी एक कंट्री की कैपिटल भी है। ठीक है, इस्लामिक स्टेट पोजेस सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर द यूरेशियन रीजन। तो जो इस्लामिक स्टेट है, जिसका कई बार नाम बोलते हैं हम ISIS, ठीक है, तो ये पूरे यूरेशियन रीजन के लिए इस समय एक थ्रेट बना हुआ है, सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। हुआ क्या है कि जो मॉस्को है उसके पास के ही रीजन में एक क्रोकस सिटी हॉल है, वहां पर इन्होंने अटैक किया था अभी रिसेंटली। तो वहां 137 इनोसेंट लोगों को मार डाला इन्होंने। अब इससे ये पता चलता है कि जो IS, जिसको हम ISIS भी कहते हैं, ISIS, इसका मतलब है इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड सीरिया। ये IS का मतलब ईरान एंड सीरिया। तो जो इस्लामिक स्टेट है, जो चाहती है कि पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का रूल चले, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि जो बाकी का जो रिलीजन है, उन वाले मीन्स जो अदर देन इस्लाम का कोई भी रीजन है, कोई कंट्री है, उन सब पर इस्लाम का शासन एस्टैब्लिश हो जाए और शरीयत या कुरान के अकॉर्डिंग उन पर लॉ चलना चाहिए। ये इनका मेन मोटिव है इस्लामिक स्टेट का। ठीक है, स्टार्टिंग इन्होंने की है सीरिया और इराक से। तो रिसेंट टाइम में पिछले 6 इयर्स में अगर हम देखें तो ये मीन्स पहले खत्म हो चुका था, लेकिन अब जब इसने मॉस्को में अटैक किया है ना, अफगानिस्तान में इसने अटैक किया, ईरान के करमन में इसने अटैक किया, वहां पर 200 लोगों के आसपास इनको मार डाला इन्होंने। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो ISIS है ये रिवाइव कर रहा है और ये पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे इन जनवरी द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, अब ये दो हैं, देखो ISIS, ठीक है, एक तो ये नॉर्मल हो गया और एक दूसरा हो गया के। ये खुरासान वाला रीजन है जो अफगानिस्तान के आसपास वाला है, ये वहां से अपना सारा काम जो है ऑपरेट करते हैं, अपने सारे के सारे टेररिस्ट अटैक्स को। तो इन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया था, करमन जो है एक सिटी है ईरान का, वहां पर इन्होंने अटैक कर दिया था। ठीक है, और इस बॉम्बिंग में देखो 80 लोग यहाँ पर मारे गए थे, और भी बाद में हुआ तो उसमें भी मारे गए। और ISIS अब रिसेंटली टारगेट देखो टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान, इन पर ये अटैक कर रही है। और अब तो इन्होंने कहां पर पहुंच गए, ये मॉस्को पहुंच गए, दैट इज इन रशिया। और इससे ये पता चल रहा है कि अब ये केवल सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान तक ही लिमिटेड नहीं रहे, अब ये कहां तक पहुंच गए, मॉस्को अर्थात रशिया तक पहुंच गए। और अगर ये रशिया तक पहुंच गए, इट मींस इनके लोग
रसिया में होंगे, इनके लोग यूरोप में कहीं होंगे, तभी तो वो अटैक कर पाए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने पकड़ा भी है। ये जो ISK है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, ये 2015 में फाइंड हुई थी, तब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और इन्होंने ज्यादातर लोगों को कहाँ से रिक्रूट किया, सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं, जैसे आपका अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, या जो है उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उन कंट्रीज से इन्होंने ज्यादातर रिक्रूट को लिया। और इनके रिक्रूट जब इन्होंने रिक्रूट किया तो उसमें सारे के सारे लोग कौन थे, सुन्नी। अब इनका स्टार्टिंग जब इन्होंने की तो अफगानिस्तान में जो शिया लोग हैं, शिया मुस्लिम्स, शिया लोगों पर इन्होंने अटैक स्टार्ट की और बहुत सारे शिया लोगों को इन्होंने मार डाला। ठीक है, आपको जानते ही होंगे कि शिया और सुन्नी, ठीक है, इन दोनों में बड़े लेवल पर कत्लेआम और वॉर जैसी सिचुएशन हमेशा चलती रहती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब इन्होंने उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह यहाँ की माइनॉरिटीज पर भी इन्होंने अटैक किए। ठीक है, अब जैसे आप जानते होंगे कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान का रूल चल रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि तालिबान मतलब इसमें जो है मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम के अगेंस्ट में ये कोई अटैक वगैरह नहीं करेंगे। देखो, तालिबान जो मुस्लिम्स हैं वो सुन्नी है, और इन्हीं के सपोर्ट में फिर जो शिया हो गए, शेख हो गए, सैयद हो गए, अहले हदीस हो गए, बरेलवी हो गए, ऐसे फिर जो अदर इस्लामिक सेक्ट हैं उन पर ये अटैक करते रहते हैं। ठीक है, अब जो तालिबान है, तालिबान में भी अफगानिस्तान के कुछ ही लोग शामिल हैं, और वो ज्यादातर कौन से हैं, जो अफगानिस्तान का पश्तून वाला रीजन है, वही लोग तालिबान में सत्ता में है। ठीक है, तो सारे के सारे लोग, इसका मतलब इसमें अफगानिस्तान में वहां जो तालिबान का रूल है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो ISK है उसने रसिया के अगेंस्ट में बहुत सारे वीडियो से चलाए थे, जो प्रोपेगेंडा था व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में। इनका ये कहना है कि भाई देखो, जो अफगानिस्तान है, चेचन्या है, सीरिया है, यहाँ पर जो रसिया ने कभी, जब रसिया USSR हुआ करता था, उसने यहाँ पर मुसलमानों का खून बहाया था, तो हम रसिया में भी क्रिश्चियन लोगों को मारेंगे, या ऐसा कुछ ये इनका कहना है कि रसिया स्पिल्ड द ब्लड ऑफ मुस्लिम्स, तो इन्होंने बहाया था, तो अब हम ये उस पर क्या करते हैं, फिर बाद में अटैक करते हैं। इसके लिए तर्क क्या देते हैं, लॉजिक क्या देते हैं कि भाई देखो, सीरिया में जब बशर अल असद की गवर्नमेंट थी तो उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट किया किसने, रसिया ने। लेकिन जो टेररिस्ट ग्रुप से वो चाहते थे कि बशर अल असद ये गवर्नमेंट से हट जाए और वहां पर टेररिस्ट जो लोग हैं, तालिबान है, उनका क्या हो, रूल हो। और यहीं पर ऐसे ही अलकायदा वगैरह का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, IS का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब का जहां कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट होता है, सबसे पहले उन जो इनके जो रिक्रूट होते हैं उनमें ये हेट्रेड सबसे पहले देखते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं। जैसे जब अलकायदा, जो आपको पता होगा उसामा बिन लादेन, ठीक है, या इस्लामिक स्टेट, ये जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनका फाउंडेशन हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने नफरत भरी किसके अगेंस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में, या नॉन इस्लामिक लोगों के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इन्होंने रिक्रूट किया ये तो जैसे ये देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एंटी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा टू बिल्ड नेटवर्क अक्रॉस वेस्ट एशिया। तो वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में नफरत के इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाए, और फिर उन्होंने लोगों को जो यूथ थे उनको रिक्रूट किया और अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में उनको इन्होंने शामिल किया। जो युवा होते हैं कई बार बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते और रिलीजन के बेसिस पर एकदम बहक जाते हैं या उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, तो वो यूज हो जाते हैं बड़ी आसानी से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, तो अब यहाँ हमें देखने को ये बता रहे हैं कि देखो, जो रसिया है उसको अपने यहाँ की सिक्योरिटी को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज रसिया में सेंट्रल एशिया के बहुत सारे लोग एज ए लेबरर वगैरह वर्क कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से अफगानिस्तान से, ताजिकिस्तान वगैरह यहाँ के लोग अगर रसिया में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वही लोग वहां पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ये इस आर्टिकल का कहना है। तो रसिया को बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना होगा, कॉशियस रहना होगा कि जिन लोगों को वो अपने यहाँ पर वर्क के लिए बुला रहे हैं, वीजा दे रहे हैं, वही लोग वहां पर उनके यहाँ अटैक भी कर रहे हैं।
ठीक है, ये कहना है इस आर्टिकल का, ठीक है। और इसमें अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात देखें तो पुतिन के अगेंस्ट में तो इनका पहले से ही एक बहुत ज्यादा जो है थ्रेट चल ही रहा है, एक हेट्रेड इनके उसमें है कि हम रशिया को या यूएसए को या वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट में तो ये हमेशा काम करते हैं। अब अगर हम तालिबान की बात करें तो जब से तालिबान 2021 अगस्त से इसमें सत्ता में आया तब से अटैक बढ़ गए हैं बाकी अदर रीजन्स में, बिकॉज जो तालिबान है वो हमेशा आईएस को सपोर्ट करता हुआ आया है, बिकॉज तालिबान भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सुन्नी मुस्लिम्स का, और जो आईएस है ये भी सुन्नी मुस्लिम्स का ही एक जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये हमेशा जब भी अटैक करते हैं तो मोस्टली सिया वाले रीजन में ही इनके अटैक मिलेंगे। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा तो उसमें करमन सिटी पर अटैक हुआ था ईरान, तो ईरान में जो करमन सिटी वाला रीजन था वहां कौन है, शिया लोग हैं, ठीक है, तो उन पर अटैक हुआ। तो ये रहा यहाँ इस आर्टिकल का मेन पॉइंट, ठीक है। तो आज के इस सेशन में गाइस इतना ही। नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन विद अ न्यू आर्टिकल एंड वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूज एंड करंट अफेयर्स एंड फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज and regions, geographical knowledge, etc. So we are going to end this session. Thank you. Goodbye. Take care.